11th class, welcome again in your English Kaksha. Today we are going to start 7th chapter of your snapshot book and the chapter name is Birth. It is written by A.J. Cronin. Before this we are heading 6th chapter, The Ghat of the Only World, that is deleted by CBSE, and after this chapter the Melon City is also given, that is also deleted this year by CBSE. So this is the last chapter of your syllabus that we are going to read today. Let's see what is given in this introductory part. In this excerpt from the Citadel Andrew mentioned, excerpt means a piece of writing. The piece of writing that we are going to read by the name of Birth here is taken from the Citadel Andrew Mason. This is the name of the person who newly out of medical school has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. हेयर एंड्रू मेशन जो है वो एक डॉक्टर है जिसने अभी अभी अपनी मेडिकल डिग्री जो है वो क्लियर की है और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने वाला है अंडर द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर एडवर्ड पेज. दिस इज द नेम ऑफ द डॉक्टर अंडर द असिस्टेंस ऑफ whom he was going to practice his medical practice where in the Welsh mining town of Blenheim. As he is returning from a disappointing evening, how it can be disappointing evening कैसे हो सकती है? उसने कुछ ऐसा देखा होगा, उसने ऐसा कुछ फील किया होगा जिसकी वजह से वो बहुत उदास था. That's why it is called disappointing evening here. And here it is given as he is returning from a disappointing evening with Christian. Christian is the name of the girl to whom he loves. Means he was on date with her, but what happened with her and why he was feeling disappointing on that evening, it is given just as a beginning. The girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. And on that evening when he was very, very sad and returning after meeting with his girlfriend Christian, but on the way he met Joe Morgan and his wife. Joe Morgan जो है एक आदमी है और उसकी वाइफ जिसकी 20 साल पहले शादी हुई थी एंड दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स. उसे वो मिलता है और फिर क्या होता है वो हम इस चैप्टर में भी देखते हैं. लेट्स सी इन द टेक्स्ट. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brangor, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. हेयर कहता है कि दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, चाहे रात हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी, व्हेन एंड्रू रीच ब्रैनगर, जहाँ वो रहता था. एंड्रू जब अपने घर पहुँचा उसने देखा कि जो मॉर्गन जो है उसके लिए वेट कर रहा था. वो स्टेयर्स पे कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है और जल्दी जल्दी ऊपर नीचे उसके घर के आगे वो टहल रहा था. मीन्स डेस्परेटली ही वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर एंड्रू. एट द साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसने एंड्रू को देखा, द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ. बर्ली ड्रिलर्स मीन्स the person who was in the strange stress or in deep stress. उसने जैसे ही उसको देखा उसका जो स्ट्रेस था वो थोड़ा सा रिलीज हो गया और वो रिलीफ महसूस करने लगा डॉक्टर को देखकर. और डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. कहता है मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको ये जो लाइन्स हैं, आई जो है यहाँ पे किसको मेंशन कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? जो मॉर्गन को. ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इस लेसन्स में देखनी पड़ेंगी क्योंकि रीडिंग जो पैसेज आपका आएगा या एक्सट्रैक्ट जो आएगा वो आपको उसमें हेल्पफुल होती है. आई एम ग्लैड टू सी यू. हेयर जो मॉर्गन सेड टू द डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर हिम फॉर द लास्ट आवर. द मिसेस वॉन्ट्स ये. मिसेस मीन्स हिज मिसेज. हु वॉज हिज मिसेज? मिसेज मॉर्गन वॉन्ट्स ये मीन्स यू. मेरी मिसेज को आपकी नीड है. बिफोर टाइम टू, कहता है टाइम जो है वो भी था लेकिन बिफोर द टाइम इज मेंशन फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी के टाइम से पहले ही उसको जरूरत पड़ गई थी. फाइन. एंड्रू एडप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट. कंटेम्पलेशन मीन्स क्योंकि वो अभी वो मीटिंग से आया था जो कि क्रिश्चियन के साथ थी और उस वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था. बट स्टिल जो उसके वो थॉट्स थे रिगार्डिंग दैट डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, उसने उन्हें हटाकर मीन्स उन विचारों को हटाया और उसने मॉर्गन को कहा
जो मॉर्गन को कहा कि आप वेट करो, मैं भी आता हूँ। He went into the house for his bag and then together they set out for number 12 Blenia Terrace. उसके बाद उसने अपना बैग लिया और वो दोनों ब्लेनिया टेरेस जो है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द प्लेस वेयर दे बोथ वर सपोज टू रीच, जहाँ उन दोनों को जाना था। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट, दैट्स व्हाई इट इज सेड द एयर वॉज कूल, ठंडी हवा चल रही थी, एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और अंधेरा होना शुरू हो गया था। यूजुअली सो परसेप्टिव, जैसे कि अपना अपना परसेप्शन होता है सबका चीज़ें देखने का। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, एंड्रयू को भी बहुत ही डल और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा फील हो रहा था। ही हैड नो प्रोमिनेशन दैट हिज नाइट कुड कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेंडली। प्रेमिनेशन जो है इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग। He had no strong feeling that this night call would prove unusual, लेकिन उसे ये लग रहा था कि आज की जो ये रात है वो एक कॉमन या एक यूजुअल नाइट नहीं होगी। Still less that it would influence his whole future in Blenheim, because he was expecting his first baby and he was in Blenheim and there उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। Fine. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. दोनों ही उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो कि नंबर 12 है, और जो है वो दरवाज़ा खोलता है। I will not come in, he said, and his voice showed sign of strain. उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। जैसे ही उसने कहा कि ये पता चल रहा था कि वो बहुत स्ट्रेस में है। But man, I know you will do well for us. उसने कहा कि I know man, I know मैन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर एंड्रयू मेशन। कहता है कि एंड्रयू मेशन को उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे हमारे लिए वो अच्छा ही होगा। Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Here Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. जैसे ही वो अंदर जाता है उन स्टेयर से, वो छोटे से बेडरूम की तरफ जाता है, और वो बेडरूम जो कि साफ था बट पुअरली फर्निश्ड था, और उसमें एक ऑयल लैंप जला रखा था। एंड हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर, मिसिज मॉर्गन की मदर वहाँ पर बैठी हुई थी, जो कि फिजिक में लंबी थी, उसके ग्रे हेयर थे और लगभग 70 ईयर्स की लग रही थी। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, मिडवाइफ होता है नर्स जिसकी वो पहले हेल्प ले रहे थे फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी, एंड शी वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर। शी वॉज हैवी, एल्डरली, एंड she was waiting beside the patient, and they both, Mrs. Morgan and the midwife, watched Andrew's expression as he moved about the room. जैसे ही वो रूम के अंदर आया, दोनों ने उसके फेस के एक्सप्रेशंस को नोट किया। Let me make you a cup of tea, Dr. Batch. Batch means bachelor, said the farmer quickly after a few moments. Here farmer mentions to or refers to Mrs. Morgan. तो मिसिज मॉर्गन ने उससे कहा कि मैं आपके लिए कप चाय बना लेती हूँ। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। कहते हैं कि जो लेडी थी, मीन्स मिसिज मॉर्गन जो थी उसकी मदर, उसे ये लग रहा था कि अभी थोड़ा टाइम है, और मे बी वो ये फील कर रही थी कि कहीं डॉक्टर ये ना कह दे कि वो इस केस को नहीं लेगा, और ये कहकर वो ये कहेगा कि वो थोड़ी देर बाद आएगा और वो वहाँ से चला जाएगा। ये एंड्रयू मेशन ने सोचा कि शायद उसकी मदर उसको देख के ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी, और वो ये सोच रही थी, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। लेकिन मैंने जब उसको ये देखा तो मैंने उसको कहा, इट मीन्स एंड्रयू मेशन ने कहा उस लेडी को कि आप डरो मत, डोंट बी अफ्रेड मदर, आई विल नॉट रन अवे, मैं नहीं जाऊँगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, और नीचे ही बेडरूम से नीचे उतरते ही वहाँ पर एक किचन था जहाँ पे उसने उसे चाय बना के दी और उसने पी ली। ओवररोट एज ही वॉज, ओवररोट मीन्स वेरी टायर्ड, एज ही वॉज वेरी टायर्ड ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, ही वेंट होम। उसे पता था कि वो 1 घंटे की भी नींद नहीं ले सकता, जबकि वो घर भी चला जाता तब भी उसे 1 घंटे की नींद नहीं मिलनी थी, बिकॉज ही वॉज इन a very serious case now. He now knew that the case here would demand all his attention. और उसे ये भी पता था कि जिस केस के लिए वो यहाँ आया है उसके लिए उसे पूरी अटेंशन देने की ज़रूरत है। A queer lethargy of spirit came upon him.
कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा एक आलस कह लो या एक छोटी सी नींद की झपकी कह लो उसे फील हो रही थी, बट ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल इवनिंग वॉज ओवर। उसने ये डिसाइड किया कि वहीं रहेगा जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, एवरीथिंग वॉज ओवर, ओके। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. It was still except the rustle of the cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद वो ऊपर गया, उसने सब कुछ दोबारा से देखा और फिर उसे लगा कि अब सब ठीक है। वो दोबारा नीचे आ गया और नीचे किचन में आकर वो फायर के पास बैठ गया। अब उस किचन के अंदर इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ द सिंडर, जैसे आग जल रही थी तो सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी अंगीठी में और टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी वॉल क्लॉक से। अदरवाइज देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस। नो, देयर वॉज अनदर साउंड ऑल्सो, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। इसके अलावा वो मॉर्गन के फुटस्टेप्स की आवाज़ भी सुन पा रहा था जो कि बाहर स्ट्रीट में मूव कर रहा था। ही वॉज मूविंग हियर एंड देयर जस्ट फॉर वेटिंग द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, दैट्स व्हाई ही वॉज मूविंग हियर एंड देयर इन स्ट्रेस। और उसके जो फुटस्टेप्स की आवाज़ थी वो भी वो सुन पा रहा था। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. और जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी वो भी उसके पास बैठी हुई थी, ब्लैक कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आइज़ जो थी बड़ी उम्मीद से उसको देख रही थी, वाइज, और ऐसे लग रहा था बहुत ही बुद्धिमान है वो, लेकिन उसका जो फेस था वो घूरने से हट नहीं रही थी। मीन्स शी वॉज कॉन्टीन्यूसली ग्लेरिंग एट द फेस ऑफ डॉक्टर एंड्रयू। His thoughts were heavy and muddled. Here his refers to Dr. Morgan. Here Dr. Morgan के जो thoughts बताए गए हैं that was muddled. Muddled means not arranged. He was thinking for anything. Means इधर उधर की बातों को वो सोच रहा था about that incident that happened that evening with Christian. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. और कहते हैं कि जो अभी अभी जो घटना उसके साथ हुई थी कार्डिफ स्टेशन पर, उसे वो बहुत ही अनप्लेजेंटली और अनइंटरेस्टिंगली ऑब्सेस्ड कर रहा था। मीन्स अभी भी उसे फील कर रहा था। ही थॉट ऑफ ब्रैनबेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली। अभी वो उस ब्रैनबेल के बारे में सोच रहा था जिसे कि एक वुमन ने चीट किया था। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू स्विश बोल्डवेन, और जो कि दूसरे लड़के के साथ चली गई थी, डैनी के साथ, लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिज वर डिसमल फेलियर, और उसने कहा कि जो शादियां जो हैं वो हमेशा फेल होती हैं, एंड दैट वाज द रीज़न ही ब्रोक अप विद हिज वाइफ हु ब्रैमवेल के बारे में सोच रहा था, जिसकी वाइफ से उसका अभी अभी ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि उसे ये लगता था कि मैरिज जो है वो डिसमल का कारण बनती है। एंड इट वॉज द कंक्लूजन इन विच हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस, और यही बातें सोच कर वो परेशान हो रहा था। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट बिफोर दैट, यानी कि इस इंसिडेंट से पहले वो शादी को बहुत ही प्लेजेंट स्टेट मानता था। आइडलिक मीन्स इंटरेस्टिंग एंड प्लेजेंट, उसे लगता था कि बहुत अच्छी चीज़ है। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिश्चियन बिफोर हिम, क्योंकि वो पहले क्रिश्चियन को बहुत पसंद करता था और उसे लगता था कि क्रिश्चियन ऐसी लड़की नहीं है जिससे उसे कभी दुख मिल सकता है। हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। इट वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हर्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, और शायद यही उसके डाउट्स थे, यही उसका कन्फ्यूजन था जो कि उसे इस टाइम डिप्रेस किए हुए था। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christian that he started. When the old woman opposite suddenly addressed him, her meditation had pursued a different course. कहते हैं कि अब वो उसके ख्यालों में इतना खो गया कि उसने अपने टांगों को पसारा और उस आग की तरफ वो देखने लगा। बहुत रिलैक्स होकर वो बैठ गया और क्रिश्चियन के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उस ओल्ड वुमेन ने उसको, जो कि उसके साथ में बैठी हुई थी, उसे बुलाया, और उसके जो बुलाने का जो तरीका था, उससे उसका जो ध्यान था डॉक्टर मॉर्गन का, वो उसकी तरफ चला गया। किसकी तरफ? मिसेस मॉर्गन की मदर की तरफ। फाइन। एंड वाई शी कॉल्ड हिम? एक्चुअली शी वॉन्टेड टू इन्फॉर्म
him that Susan is the name of Joe Morgan's wife. Susan Joe Morgan, right? Susan ने ये कहा था कि उसे क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए क्योंकि ये बेबी को हार्म कर सकता है. She awfully set upon the child, Dr. Batch. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in low tone, "Oh, we all are, I fancy." तो वो जो लेडी थी, इट मीन्स जो मॉर्गन की मदर इन लॉ थी, वो कहती है कि सूजन ने कहा था कि क्लोरोफॉर्म बेबी को मत देना, उसको मत देना ताकि बेबी को कोई हार्म ना हो. और अचानक से उसे ये याद आया और उसने डॉक्टर को बोल दिया. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. जैसे ही ओल्ड वुमेन ने डॉक्टर को ये बताया, उसने सभी अपनी ताकत जो थी इकट्ठी की. मीन्स उसके जो थॉट्स थे वो बाहर आया. इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट. उसने कहा कि एनेस्थीसिया से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो दोनों ठीक रहेंगे. Here the nurse voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock which now showed 3:30. 3:30 means 3:30. तभी अचानक से उस मिडवाइफ की आवाज़ आती है और वो क्लॉक की तरफ देखता है तो इसमें 3:30 बजे थे. He rose and went up to the bedroom. उठा और वो बेडरूम की तरफ गया. He perceived that he might now begin his work. उसे ये लगा कि अब उसे उसका काम शुरू कर देना चाहिए. कौन सा काम? To get the birth of the baby of Joe Morgan and his wife. An hour elapsed. It was long, harsh struggle. Then, as the first streak of dawn stayed past the broken edges of the blind, the child was born, lifeless. 1 घंटे के बाद, 1 घंटा जो कि बहुत लंबा टाइम लगा और it was like a harsh struggle. 1 घंटे के बाद एक बेबी का जन्म तो हुआ, लेकिन वो लाइफलेस था. लाइफलेस मीन्स जान नहीं थी उसमें. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसका जो डर था वो उसके चेहरे पर आ गया. After all that he had promised, और उसे लगा कि उसने तो प्रॉमिस किया था कि उसे कुछ नहीं होगा. His face heated with his own exertions. उसके फेस पे उसकी जो सारी थकावट थी या जो उसकी परेशानी थी वो सब अचानक से आ गई. And chilled suddenly. और वो सोच में पड़ गया. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child. Resuscitate means to revive the child. रिवाइव करने के लिए, उसको पुश करने के लिए उसने अपनी अटेम्प्ट जो थे वो शुरू किए. एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर हु वाज हरसेल्फ इन डेस्परेट स्टेट. और उसकी जो ड्यूटी थी उसे लगा उस मदर की तरफ, तो उसने अपने अटेम्प्ट्स को शुरू किया उस बेबी को बचाने के लिए. द डायलेमा वाज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay clasped, almost pulseless, and not yet out of the ether upon her side. लेकिन जैसे ही उसने नोटिस किया कि उसकी मदर को भी अभी उसकी नीड थी, तो उसके लिए ये एक डायलेमा था. डायलेमा मीन्स दिस वाज अ कन्फ्यूजन, व्हाट टू डू एंड फॉर whom. पहले उसे बेबी को बचाना चाहिए या पहले उसकी मदर को बचाना चाहिए. तो उसने क्या किया, उसने उस बेबी को नर्स को दे दिया और उसने अपना पूरा ध्यान सूजन मॉर्गन की तरफ लगा दिया. His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. Then he flung down the hypodermic syringe and worked up sprangly to restore the flaccid woman. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung round in his shirt sleeves, his hair streaking to his damp brow. Where is the child? तभी उसने जो अपनी स्ट्रेंथ थी उस लड़की को बचाने के लिए, यानी कि सूजन मॉर्गन को बचाने के लिए किया. उसने जल्दी से एक वैक्सीन, जैसे आप हाइपोडर्मिक सिरिंज से उसने यूज़ किया और उसे एक वैक्सीन दिया जिससे कि उसको होश आ जाए और वो सेफ हो जाए. उसके बाद उसने अपनी शर्ट की बाजुओं को यानी कि स्लीव्स को फोल्ड किया और उसने उस बेबी के बारे में पूछा जो कि उसने उस नर्स को दिया था. द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर. She had placed it beneath the bed. जैसे ही डॉक्टर ने पूछा where is the child, मिडवाइफ ने बहुत ही डरावना जेस्चर दिया और क्योंकि उसने उस बेबी को बेड के नीचे फेंक दिया था. इन अ फ्लैश एंड्रू knelt down. अचानक से एंड्रू झुक गया. Flashing amongst the sodden newspaper below the bed, he pulled out the child, a boy perfectly formed. The limp, warm body was white and soft and tallow. The cord
hastily slashed, lay like a broken stem, the skin of a lovely texture, smooth and tender, the head lolled on the thin neck, the limbs seemed boneless. Here tallows meaning is given, that is हार्ड फैट ऑफ एनिमल मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप एंड कैंडल एक्सेट्रा। जो एक मांस का लोथड़ा होता है ना, उसे बोला जाता है टेलो। कहते हैं जो बेबी था उसने उसे निकाला बहुत ही परफेक्टली, उस बेबी का जो फिजिक था वो बना हुआ था, उसमें जो बॉडी पार्ट्स थे वो प्योर थे, वाइट कलर के थे, सॉफ्ट थे और बहुत ही वो मस्कुलर था। मीन्स मस्कुलर इन द सेंस ही वॉज वेरी फ्लैशी इन हिज फिजिक, इन हिज बॉडी, लेकिन ही वॉज लाइफलेस। तभी उसने उसे निकाला तो उसकी जो गर्दन थी लोल्ड ऑन द थिक नेक, गर्दन उसकी जो थी वो झूलने लगी, क्योंकि छोटे बच्चों की गर्दन टिकती तो है नहीं। जैसे उसने उठाया उसे, उसकी गर्दन नीचे लटक रही थी। एंड द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके जो फेफड़े थे ऐसे लग रहा था जैसे उसमें कोई हड्डी है ही नहीं, क्योंकि उसमें ना तो ब्रीथिंग थी ना ही उसमें कोई चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो लाइफलेस था। इसलिए उसकी पूरी बॉडी वाइट लग रही थी। अगर उसके अंदर जान होती तो शायद वो रेड नज़र आता, और लेकिन अभी उसके अंदर जान नहीं थी, इसलिए वो बिल्कुल वाइट था। तो देखते हैं आगे उसने कैसे उसको बचाया।